Dear students of 12th class English, we'll discuss some poetry, and today we have chosen poem which is entitled as When Autumn Came. Originally written in Urdu by famous Urdu poet Faiz Ahmad Faiz, and it has been translated into English by Naomi Lazard. And I will try to say you that this Faiz Ahmad Faiz, he was born in 1911 in Sialkot and he died in 1984 at Lahore. He is known one of the revolutionary Urdu poets. A League poet he is, and he has been with the labor movement also, and he has lectured in Amritsar for some time, and some of the collections of Urdu are Naqsh Faryadi, Harf Harf, Daste Saba, Zinda Nama, etc. And his English, there is one of his English poetic volumes that is called as Lamentations and Fingers of Breeze. When Autumn Came is the title. Autumn means Khazan, Patjad, Harudiyat vanış. Yeli harud aav. Faiz Ahmad Faiz chu wanan yeli harud aav. The hardas chu yet su karan use as a tyrannical force. This is the way that autumn came to the trees. So there are two main images, that is autumn and under is the trees. So the trees, they symbolize something. They are metaphorically used for something. But still we can say in first instance that autumn is one of the seasons. There are 4 seasons, that is spring, summer, autumn and winter. And we know that autumn is the culmination of the goodness in the environment, that is trees become dried up their leaves, that is the harsh winter is then coming in future. So this autumn, this is something which is gloomy, which is bad. Which kanch cheez so yuzan yathis panan ch ghamzad mahol ch pod karan yuzan ye now meet yash pod karan to ichu dapan ki when it came to the trees. This is the way. Yetam ch is, yetam ch came, or yetam ch change of tense and suti korno. This is the way. तो इस तरीके से ये जो खजां है ये दरख्तों पे आता है. It ये आ गया. It stripped them down to the skin. तो ये खजां इस autumn ने, it is the pronoun for this autumn. तो what it did, it stripped them. इसने इनसे छीन लिया. इन्हें ज़िल्त ही मन क्या इन्हें पहले इन्हें सोरी क्या ज़िल्त ने भी मन ओस ये यानी इन leaves इन पान पत्तर down to skin तो आत गए ज़ंत skin exposed यानी कूल गए exposed, left their ebony bodies. Here word ebony is used. Ebony means something which is blackish or black. So this black is the tree when it is devoid of leaves. जब इस पे पत्ते नहीं होते हैं तो ये काला दिखता है, लेकिन जब दरख्त पे पत्ते होते तो खूबसूरत ये सबज सरसब्ज दिखाई देता है. So there is word for the trees. There is the pronoun for the trees and it is pronoun for the autumn. So left their ebony bodies naked. ये कहता है उसे उनको नंगा कर दिया, उनके पत्ते जो झाड़ दिए. It shook out their hearts. तो ये बात कहता है कि जो दरख्त हैं, जैसे उनके पत्ते जो हैं ये उनके पत्ते क्या होते हैं, उनके ऊपर जैसे होते हैं हार्ट्स. ये दरख्तों की समझो टहनियाँ हैं, तो उन पे जो पत्ते होते हैं वो पत्ते होते हैं जैसे उनके हार्ट्स होते हैं. तो इट शुक देम, तो इसने उनको गिरा दिया. जब ये पत्ते इसमें बहुत सारे थे तो इस खिज़ां ने उनको नीचे गिरा दिया, इन पत्तों को जैसे इनके दिल जो थे इनको गिरा दे. इट शुक देयर हार्ट्स. देयर मीन्स ऑफ ट्रीज, इट मीन्स द ऑटम, द वेरी टायरेनिकल फोर्स, जालिम जो कोई ताकत है. तो द येलो लीव्स.
यानी जो पहले होते थे ग्रीन, अब ये ऑटम ने इनको येलो बना दिया, तो ये जो सूखे, ये जो पीले पीले ये पत्ते जो गिर गए जैसे उनके दिल थे, तो इस तरह से उनकी बॉडी और उनका हार्ट दोनों चीज़ें, जो उनके अंदर कुछ भी था, उमंग थी, कोई ताकत थी, उसको उसने क्या ज़ेर कर दिया, स्कैटर्ड देम ओवर द ग्राउंड, और उनको फिर फैला दिया। वो एक जगह जमा भी नहीं हुए, उनके अंदर यूनिटी भी नहीं है, वो इधर इधर बिखर गए, दे स्कैटर्ड, उसने उनको क्या किया, स्कैटर कर दिया, यहाँ से वहाँ उनको बिखेर के रख दिया, इट स्कैटर्ड देम, इनको बिखेर के रख दिया, इनको बिखेर के रख दिया, इनको पत्तों को जमीन पे, एंड इवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ द शेप, तो पत्तों की कोई शेप थी, चाहे हार्ट शेप थे, चाहे हैंड शेप थे, चाहे हमारे कड़िस बोन पन पतर अथ ही तिम ति बड़ रत लगान, गो अगर तिम पेट कह पक सह कर तिम ट्रैम्पल, चाहे इंसान आए जानवर आए मैन और एनिमल, ट्रैम्पल मतलब गो पाँव तले रोंदना, ट्रैम्पल इट, एंड एनीवन कुड ट्रैम्पल, इनको रोंद सकता है अब कोई, एनीवन को ट्रैम्पल, इनको रोंद सकता है कोई, आप शेप इनकी, यानी इनको इनकी फिर कोई हैसियत भी नहीं रहेगी, अनडिस्टर्ब्ड बाय सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट, तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से अगर कोई आवाज भी आएगी वो प्रोटेस्ट नहीं लगेगी, वो जो ट्रैम्पल ऊपर से करेगा तो उसको उसमें लुत्फ ही आएगा, जैसे बच्चे पत्तों के ऊपर से गुजरते हैं, एंड द बर्ड्स दैट अनडिस्टर्ब्ड बाय सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट, तो ये था ट्रीज का। अब जो ये आटम है, इसकी ये जो जालिमाना, ये जो उसकी ताकत है, वो सिर्फ दरख्तों पे नहीं आती है, बल्कि किन पे आती है, माहौल में और एक चीज पे आती है, दैट इज द बर्ड्स, बर्ड्स हो गए परिंदे, बर्ड्स गई उड़न जानवर, द बर्ड्स दैट हेराल्ड ड्रीम्स, जो खुशखबरी का पैगाम लेके आते हैं, जो ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया की खुशखबरियां लाते हैं, जो चहचहाते हैं, जो सिंग करते हैं, वायर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग, जो चहचहाते थे, इजन तिमन ओस पान से बोल बाश सुस्तिमन निश दूर यवन करना, एक्साइल मीन जलाए वतन करना, दूर करना, टू रिमूव अवे, टू टेक अवे, जला वतन करना, तो उसने उनको जला वतन करके दिया, उनके जो सॉन्ग्स थे, उनकी जो चहचहाट थे वो गायब हो गई, ईच वॉइस टॉर्न आउट ऑफ हिज थ्रोट, तो हर कोई जो वॉइस, जो भी कोई आवाज थी किसी एक परिंदे की, दूसरे परिंदे की चहचहाने की आवाज, कोयल की कुकू, बुलबुल की आवाज, तो वो उसके गले से जैसे निकाल दी गई, किसके, इस आटम के, इस जालिमाना रवैये से, दे ड्रॉप्ड इनटू डस्ट, फिर वो किस में गिर गए, वो दिल बर्दाश्ता हो गए, उनका अज़म जो वो टूट गया, तो वो गिर गए किस में, मिट्टी में गिर गए, नीचे गर्द गुबार, तो उनकी हैसियत खत्म हो गई। एवन बिफोर द हंटर स्टंग हिज बो, इससे पहले कि जो हंटर है उसने अपनी वो तीर उन पे निशाना बांधा, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ये थोड़ा होते हैं कमजोर दिल के, तो ये खौफ के मारे ये बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। ओह गॉड ऑफ मे, आप ये कहता है शायर, ये कहता है फैजम पे, ओह गॉड ऑफ मे, गॉड ऑफ मे, ये तो ग्रीक मिथोलॉजी में है कि वहां पर गॉड ऑफ मे, वो उसको कहते हैं गॉड ऑफ रीबर्थ, गॉड ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि वहां थोड़ा यहाँ से मौसम हट के है, यहाँ मार्च अप्रैल से स्प्रिंग स्टार्ट होता है, वहां मे का उसमें सीजन है, तो उसको गॉड ऑफ मे, वो अब ट्रेडिशन में रहा है, गॉड ऑफ मे जो है वो फर्टिलिटी का गॉड है, वो इसका रिवाइवलिटी का गॉड है। ओह गॉड ऑफ मे, हैव मर्सी, जरा इन पर रहम करो, रहम खाओ, ब्लेस दीज विदाउट बॉडीज, तो इन बॉडीज को ब्लेस दीज, इन पे क्या करो, इन पे कुछ रहम करो, इन पे कुछ इनायत करो, यही जो बॉडीज हैं, किन की, ट्रीज की नेकेड बॉडीज, और किन की, ये जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडीज, विद द पैशन ऑफ योर रिसरेक्शन, जो तुम्हारी पैशन है, जो तुम्हारी तरफ से आप एक किस्म की देते हो, एक किस्म की उमंग देते हो, एक किस्म का वलवला देते हो, रिसरेक्शन मतलब रीबर्थ, टू गेन लाइफ अगेन, इसी का मेक दियर डेड वेन्स फ्लो विद ब्लड, क्योंकि इसको पता है कि आगे विंटर है ऑटम के बाद, लेकिन उसके बाद स्प्रिंग आने वाला, फिर बाहर आने वाली, नई बाहर आनी, मेक दियर डेड वेन्स फ्लो विद ब्लड, यानी कि जो रगे हैं, जो सुखी हैं, जो अब बिल्कुल कमजोरी की हालत में है, इनको इनमें नई जान, इनमें नया खून जो है वो भर दीजिए। गिव सम ट्री, किसी दरख्त को दीजिए गिफ्ट, एक तोहफा दीजिए आप, ग्रीन अगेन, फिर उस पर सरसब्जी आ जाए, उस पर जान नहीं आ जाए, लेट वन बर्ड सिंग, जरा एक परिंदा जो है वो थोड़ा और गुनगुनाए, चहचहाए। नाउ वी विल
say something about the poetic devices, about the theme, about the symbolism in this poem. This is the way that autumn came to the trees. So these trees can metaphorically, they can represent the human beings. The human beings. But those human beings who are the worker class, the labor class. And autumn is the capitalist class. So this autumn, this can, or maybe it had been used for the imperialist forces at that time when Paz wrote this poem, because the imperialism had that has given rise to slavery. जो अफ्रीका के जो गुलाम लाए जाते थे तो उनको फिर बड़े बड़े मुल्क जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज में उनको ले जाते थे, उनसे ज़बरदस्ती बेगार का काम लेते थे, उनके साथ बुरा सलूक करते थे. तो वो जो इंपीरियलिस्ट है वो एक बड़ा जालिम है आटम की तरह. जो और दरख्त जो ट्रीज हैं ये वो बेचारे वो अफ्रीका के गुलाम हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके देयर इबोनी बॉडीज ये बने होंगे ब्लैकिश और ब्लैक बॉडीज. तो उनकी ब्लैक बॉडीज को नेकड कर दिया, यानी उनके अंदर जो जान थी, उनके अंदर जो कुछ हौसला था, कुछ था, वो उनसे सब खत्म किया गया. उनको वहाँ उनसे ये गुलामी की ज़िंदगी उनको इख्तियार करनी पड़ी. तो इससे क्या हुआ कि ये जो ट्रीज़ हैं और बर्ड्स हैं, ये पॉइंट जो है शायद ट्रीज़ को ये उन लोगों को फिर कहता है उनमें से जो लोग की आवाज़ उठाते हैं, जिनके अंदर ये होता है एक हौसला कि वो बोल पड़ते हैं, कि वो इजहार करते हैं. लेकिन उनका इजहार करना भी वहाँ उनको उसकी भी मोहलत नहीं दी गई, क्योंकि उनकी एक तो उनका जिस्मानी इज्जत उनको की गई और उनके जो दिल थे, उनका जो अंदर का हौसला था उसको भी पस्त किया गया, जैसे कि उनके हार्ट जो लीव्स की तरह गिर गए, स्कैटर हो गए. और फिर क्या हुआ, फिर ये कहता है बर्ड्स डैट हेराल्ड ड्रीम्स. तो जो बर्ड्स हैं वो शायर लोग होते हैं, वो ये लोग होते हैं जिनको हम आर्टिस्टिक तरीके के लोग होते हैं, ये थोड़ा बुज़दिल होते हैं, लेकिन ये भी किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, चाहे अपने नज़मों में, गज़लों में, शायरी के तरीके से. लेकिन ये कहता है कि उनको भी, उन पे भी इसका इतना असर हुआ इस जालिम का कि उनकी आवाज़ भी दब गई, उनकी आवाज़ दैट वाज टॉर्न ऑफ देयर थ्रोट. तो इस तरह से वो बेचारे गम के मारे वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, वो कुछ बोल नहीं सके, जैसे कि उनको अभी उसने ये हंटर ने जैसे वो भी नहीं निकाली थी, इस तरह से वो बेचारे वो ज़मीन पे गिर गए, वो खाक में मिल गए उनमें. लेकिन फिर अगर पहले जो तीन ये इसके ये स्टंजाज हैं, इनमें डिस्पैरिटी है, इनमें एक किस्म का गम का माहौल है, इनमें बेबसी है, इनमें मायूसी है, इनमें हौसला शिकने, लेकिन यहाँ एक उम्मीद है. लास्ट पे इसमें होप है, क्योंकि इसको होप है, तब ये कहता है ओ गॉड ऑफ मे ब्लेस दीज बॉडीज विद पैशन ऑफ रिसरेक्शन, ताकि रीबर्थ इनको मिले, इनको फिर बाहर आ जाए, जो आगे बाहर आने वाली है बड़ी सख्तियाँ झेलने के बाद, इनमें फिर पैदा हो जाए कोई मसीहा जो कि जिसके अंदर फिर ये पत्ते उभर आए, जो फिर इनकी बात कहे. जैसे अमेरिका में जो ब्लैक पीपल है उन्होंने भी फिर आवाज़ उठाई है उसके खिलाफ, ताकि उनको वहाँ पे बराबर हुकूक मिल सकें. और एंड लेट वन बर्ड्स, उनमें कोई शायर भी पैदा हो जो कि इस परिंदे की तरह चहचहाना शुरू कर दे. तो इस तरह से ये है. अब इसमें हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस. जो ट्रीज हैं ये मेटाफोरिकली ह्यूमन बींग्स हैं, दोज ह्यूमन बींग्स which have been subject to tyranny, and the birds they are metaphorically used for the poets, and these trees and birds and these can also be metaphorically used for the African those slaves. And there is personification also. Because yat mach wuchan ki ye chu lekhan ki yum hasa ch they were stripped down to the skin. तो ये स्किन होती है इंसान की. तो यहाँ पे ट्रीज हैं, जब हम किसी नॉन लिविंग या इन एनिमेट थिंग में हम ये ह्यूमन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टर्स को शो करता है कोई या पोइट्री में, फिक्शन में, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो इस तरह से ट्रीज जो यहाँ पे पर्सोनिफाई हो गए हैं कि दे हैव सम स्किन. एंड यहाँ पे अभी लेट वेन्स लेट blood flow in their veins again. So personification in it, and there is a single mona protest. This is also personification. अब ऐसे पत्ते तो सूखे पत्ते क्या प्रोटेस्ट करेंगे, क्या वो बात करेंगे. तो इस तरह से ये पर्सोनिफाई किया गया है इनको इसमें.